وہ اپنی لڑکے کی سکل بھی ہوتی ہے. لڑکا جو تیز ہوتا ہے وہ آگے نکلتا ہے. ہمارے پاس سے لڑکے کارپینٹروں میں گئے, اسٹیل فکسر میں گئے, آج ماشاءاللہ ہمیں جب ملنے کے لیے آتے ہیں انتہائی خوشی ہوتی ہے. وہ اچھی پوسٹ پہ, اچھی سیلری پہ. تو امید ہے کہ گورنمنٹ پاس سے تعاون کرے گی اور ہم بھی ان کے مایوس نہیں کریں گے. اس کے ساتھ میں زیادہ چاہوں گا. مہربانی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام چیئرمین پیوپا کیانی صاحب, فہیم, شکیل صاحب, دوسرے پیوپا کے عہدیداران, پروموٹرز, اور سب سے بڑھ کر ہمارے بھائی جنہوں نے یہ ٹریننگ کمپلیٹ کی ہے, آپ سب کو آج سب سے پہلے تو میری طرف سے بہت زیادہ سلام اور مبارکباد. دیکھیں جی, اس میں خاص طور پہ شکیل صاحب نے جب اس پوری ایکسرسائز کا جو ٹریننگ کروائی گئی ہے اس کا ذکر مجھ سے کیا, تو یقین کریں کہ یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کا مستقبل بدل سکتی ہے. اس میں خالی آپ کا فائدہ نہیں ہے, آپ کے گھر والوں کا فائدہ نہیں, بلکہ پورے ملک کا اور قوم کا مستقبل ٹیکنیکل ٹریننگ کے ساتھ ہے. آج جو ہنر آپ نے سیکھا ہے, اور ہنر سیکھنا جو ہے یہ ہماری اسلامی لحاظ سے بھی, مذہبی لحاظ سے بھی یہ ڈیوٹی ہے, اور خاص طور پہ جو کام بندہ ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. شکیل صاحب, میں آپ کو خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے قدم بڑھایا ہے, اور میرا خیال ہے یہ پہلا قدم ہے. اس کے بعد سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے اور ایک پورا کاروان بن جائے گا جس سے ہم اپنا مقصد حاصل کریں گے. تو میری آپ کو جی بہت خاص طور پر مبارکباد شکیل بھائی. اسی طرح پیوپا کے ساتھ سچی بات ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پارٹنرشپ کا آغاز نیو ٹیک اور پیوپا کا ہوا ہے اس کے بہت ہی مثبت نتائج آئیں گے. وہ ان ٹریننگز میں بھی اور اس کے علاوہ بھی جو انیشیٹیوز لے رہے ہیں, ہر ایک چیز جو ہے وہ یقین کریں کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے اور پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے. تو میری پیوپا کے عہدیداران کو اور تمام امپلائمنٹ پروموٹرز کو یہ یقین دہانی ہے کہ مجھے آپ اگر ایک قدم آگے نہیں تو اپنے ساتھ ضرور پائیں گے ہر انیشیٹیو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انتہائی خوشی کا دن ہے کہ پیوپا کے ذمہ جو کام لگا کہ اتنے لوگوں کو ہم نے ٹریننگ کروانی ہے, وہ ہمارے وائس چیئرمین شکیل عباسی صاحب نے اس کا بیڑا اٹھایا, اور میں عباسی صاحب کو مبارکباد بھی دوں گا کہ یہ انتہائی قابل فخر بات ہے کہ آپ نے ایک پسماندہ علاقے کے بچوں کو ٹرین کیا, اور انشاءاللہ اب جب یہ اوورسیز جابس پہ جائیں گے تو یہ اپنے خاندان کے لیے, اپنے علاقے کے لیے بہترین ثابت ہوں گے اور پاکستان کے لیے بھی مفید شہری انشاءاللہ بنیں گے. تو یہاں پہ سب دوست جو بیٹھے ہیں ہمارے پاٹا کے بھائی, تو آپ سے بھی گزارش یہ تھی کہ جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ پاکستان کے وہاں پہ سفیر ہوں گے. آپ اپنے رویے سے یہ ثابت کریں کہ آپ ایک اچھے پاکستانی ہیں, کیونکہ پہلے بھی وہاں سے شکایات یہی آ رہی ہیں رویوں کی. تو آپ سے میری یہ گزارش تھی. تو باقی پیوپا نے جو ہے وہ جو پسماندہ علاقے ہیں ان پہ اپنا فوکس کیا ہے. بلوچستان گورنمنٹ نے بھی ہمیں بلایا کہ آپ ہمیں بھی ذرا ہیلپ دیں, کیونکہ پچھلے سال اگر 8.5 لاکھ لوگ گئے ہیں تو 8,000 صرف بلوچستان سے گئے تھے, باقی سارے پنجاب, کے پی اور سندھ سے گئے تھے. تو پسماندہ علاقوں پہ بھی اب نظر ہے, تو انشاءاللہ یہ بہتری ہوگی. اور میں شکیل عباسی صاحب کو اس پہ ایک دفعہ پھر مبارکباد دوں گا جو انہوں نے بیڑا اٹھایا. اور آپ جو پروموٹر بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے بھی گزارش ہے کہ وہ شکیل عباسی صاحب سے ان کی لسٹیں لیں, اور جس کے پاس ان سے ریلیٹڈ جو بھی ویزا ہو پھر ان کو اکاموڈیٹ کریں تاکہ جلد سے جلد یہ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ای ڈی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے مصروف ٹائم میں سے انہوں نے ٹائم نکالا اور ماشاءاللہ وہ آئے. اور اس کے بعد فاٹا کے جو یہ ہمارے بھائی بیٹھے انتہائی محنتی ہیں, ان کے ساتھ 1 مہینہ میرا رہا ہے, انتہائی محنتی ہیں. اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان فاٹا کے لوگوں کو بھیجا اور یہاں پہ ٹریننگ کرائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لوگ جو ہیں وہ اسی طریقے سے جہاں پہ ہمارے قبائل بھائی ہیں, قبائل دوست ہیں, جہاں پہ کوئی
स्कूल का कोई वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे टेक्निकल स्किल का नहीं है। तो मैं इसी वसातत से ये उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि वहाँ पे टेक्निकल स्कूल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो। जब टेक्निकल स्कूल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा तो अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगी, और ये फाटा के जो लोग हैं वहाँ पे जिनके पास तालीम नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग टेक्निकल स्किल जब बनेंगे तो पहले तो कोशिश की जाएगी कि उनको बाहर भेजा जाए। अगर वो बाहर नहीं भी जा सकते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी टेक्निकल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम है। तो तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन प्रमोटर्स भाइयों का जो यहाँ पे आए, उन ट्रेड सेंटर्स के मालकान का जो यहाँ पे आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अगेन अपने चेयरमैन प्योपा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें सनद भी है और भी। सामने देखिए, अनफार अली रहमान, किबरिया रहमान, एहसानुल हक। नाज़रीन, आपने पाक टेक्निक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तकरीब का अहवाल देखा। अभी हम जो यहाँ पर सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं जिन्होंने तरबियत हासिल की है, उनसे बात करेंगे कि उनके ख्यालात, एहसासात, जज्बात क्या हैं, और वो बैरून मुल्क जाकर, खुसूसन सऊदी अरब में जाकर मुल्क कौम की खिदमत का क्या इरादा रखते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जी अमानुल्लाह। कहाँ से? लकी मारवत से। तो क्या अभी इस टाइम क्या करते हैं आप? हम जी अभी तो प्लम्बर का काम है। तो 1 महीने की ट्रेनिंग आपने यहाँ मुकम्मल की? हाँ जी। आप मुतमईन हैं कि आप बैरून मुल्क जाके डिलीवर कर सकते हैं? हाँ इंशाल्लाह मुतमईन है। जो आपके जो ट्रेनर थे उन्होंने पूरी तरह से आपको मुतमईन किया? हाँ जी मुतमईन किया पूरे तरीके से। तो आप सऊदी अरब में भी इसी प्लम्बर की जा रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह प्लम्बर की काम करते हैं इधर सऊदी अरब में। शुक्रिया। आपका नाम? जी मेरा नाम रहीमज़ाद है, मेरा अपर दिल से ताल्लुक़ है। इस वक्त क्या करते हैं आप? सर यहाँ पर तो हमने प्लम्बरी का काम करने के लिए थे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुकम्मल सीख के यहाँ पर जा रहे हैं। तो उस्तादों ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है, बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग हमें दी है। ये इदारा जो है ये बहुत अच्छा इदारा है। हमें पता है कि 1 महीने के ऊपर हमारा टाइम यहाँ पर हो गया, और यहाँ पे तकरीबन काफ़ी साथियों यहाँ से चले। लिहाजा मैं तो आने वाले बकाया जो जितने भी साथियों से भी दरख्वास्त करता हूँ वो भी इस इदारे में आते और ट्रेनिंग हासिल करते हैं। कितने साथी थे आपके? हम तकरीबन टोटल 35 साथी हैं। ये फाटा के मुख्तलिफ अजला से? फाटा तो अभी ना गए ना, अभी तो ये कि औरत रही है या मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हैं? नहीं सर, मैं तकरीबन दीर अपर से ताल्लुक़ से रखता हूँ। दीर अपर जो है वो कुमराट का आपने नाम सुना होगा। वो तो रेगुलर है। हाँ जी, पहले से ये कुमराट का इलाका है। दीर अपर जो है ये कुमराट दीर अपर में आता है ये। तो हम वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और इंशाल्लाह भी हमारा इरादा है कि अगर हम सऊदी अरब चले गए तो इंशाल्लाह अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। चौधरी अताउर रहमान साहब जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, प्रमोटर भी हैं और मुख्तलिफ अपने इदारे भी चला रहे हैं, और इस ट्रेनिंग के हवाले से भी इनका एक किरदार है। आज की इस तकरीब में ये बहसीत मेहमान ख़ास यहाँ पर मौजूद थे। इनसे जानेंगे कि ये जो ट्रेनिंग का सिलसिला शकील अब्बासी साहब ने किया है अपने इंस्टीट्यूट के ज़रिए, इसको किस हवाले से ये देखते हैं। बिस्मिल्लाह जी, ये बारिश का पहला कतरा समझे नहीं आप कि जो शकील अब्बासी साहब ने इनिशिएटिव लिया है, और मैं इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में आके इस लेवल पे जाना, और इसमें हमारे साथ नेपटेक ने बड़ा तावन किया, और शकील अब्बासी की बड़ी काविश है। ये फ्रंटियर भी गया, बलूचिस्तान भी गया, ये और इसकी कोशिश है, हमारी भी कोशिश है ताकि मिलजुल के जो दूर दराज इलाका जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है ट्रेनिंग की, और वहाँ पे अगर ये जो लड़के जो आके ट्रेनिंग की फाटा के देखें, यहाँ पे आके उन्होंने ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी सीखी होंगी, बैठना उठना सीखा होगा, क्योंकि हम भी जब जाते हैं बाहर हम भी कुछ सीख के आते हैं। किसी आप दूसरे कल्चर में जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि जो लड़के आए वहाँ से 37 का बैच था मेरे ख्याल है आपका, 37 का बैच था। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में यहाँ पे ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि उस इलाके में और हमारे में बहुत फ़र्क है, तो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने बेशुमार चीज़ें सीखी होंगी और अल्लाह करे वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें इंप्लीमेंट करें, जिससे उनके इलाके का फ़ायदा होगा, उनका रोज़गार खुलेगा। इनको देख के इस इलाके में एक शोर पैदा होगा ट्रेनिंग का। ये 37 जब अपने इलाके में जाएंगे, वहाँ जाके बताएंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ से और भी लड़के यहाँ पे फोकस करेंगे ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग ही अब ऐसा है शोबा जहाँ से हम अपनी यूथ को ट्रेन करके सिविलाइज बना के एटीट्यूड्स ट्रेनिंग दे के अवेयरनेस दे के बाहर भेजें, जिससे हमारे रेमिटेंस में फ़र्क पड़ेगा, बेरोज़गारी में फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि फारिग आदमी तो आपको पता है शैतान की दुकान है। और वैसे भी अलकासिब हबीबुल्लाह ये कहा गया है कि जो काम करने वाला, जो मेहनती है, वो अल्लाह का साथी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये शकील अब्बासी इसको लेके चलेगा। इससे हमारे में भी एनर्जी आई है इनको देख के कि हम भी इस लेवल पे जाएं। बाकी सेंटर्स को भी चाहिए वो मिलजुल के इस इलाकों में जाके फोकस करें। फैसिलिटी का दौर आ रहा है, उसमें ट्रेनिंग करें, ख़ास करके हॉस्पिटैलिटी में। अभी हम सऊदीया गए, हमें बड़ा दुख हुआ कि वहाँ पे हमारा कोई भी लड़का ऐसा नहीं मैंने देखा जो होटल लाइन में काम कर रहा हो, जो सर्विसेज में काम कर रहा हो। जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको चाहिए कि हॉस्पिटैलिटी में जाएं, अपनी ट्रेनिंग करें, उसमें बेहतर रोज़गार भी है और बेहतर सैलरी भी है और एक बाइज़्ज़त रोज़गार है। तो आपके चैनल से उन दोस्तों को, उन लड़कों को, उन यूथ को पैगाम है कि मेहरबानी करके सर्विसेज में आएँ, हॉस्पिटैलिटी में आएँ, ट्रेनिंग करें और ताकि अपना बेहतर रोज़गार कमाएँ। थैंक यू जनाब। पाक टेक्नी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के CEO और प्योपा के वाइस चेयरमैन जनाब शकील अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ट्रेनिंग के हवाले से ये क्या प्लान रखते हैं। ये शायद पहला एक सिलसिला है, तो अगले सेशन के लिए क्या तैयारी है और क्या प्लान है, क्योंकि प्योपा के साथ ज़ाहिर है कि ये मरबूत हैं, पूरे मुल्क के दौरे भी करते हैं और बेरोज़गारी की शरह से भी बखूबी आगाह है। गो के पहले से भी ये बहुत ज़्यादा डिलीवर कर चुके हैं, हज़ारों नौजवान मुख्तलिफ ममालिक में और स्पेशली सऊदी अरब भिजवा चुके हैं। तो शकील साहब ये बताइए कि क्या प्लान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके इस चैनल का शुक्रिया कि आप आए और आप लोगों ने यहाँ पे कवरेज की। देखें जी, बीइंग पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो टेक्निकल स्किल की है, सबसे ज़्यादा। देखें, एक वक्त था कि बाहर की कंट्रियों ने ऑफ़र की इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, और पाकिस्तान को ऑफ़र की तो पाकिस्तान ने कहा कि जी हमें असला चाहिए, तो उसको असला दिया गया। और इंडिया को ऑफ़र की तो इंडिया ने कहा कि हमें टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना के दिए जाएं जिसमें हमारे बच्चे सीखें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इंडिया जो है इसलिए इंस्टीट्यूट के हवाले से और टेक्निकल लोगों से और स्पेशली आईटी में वो इतना आगे जा चुका है कि बाहर की जितनी कंट्रीज़ भी हैं, आप देखें कि वहाँ पे जो भी आईटी का हेड होगा तो वो इंडियन होगा। तो मैं ये चाहता हूँ और आपकी ये टीवी चैनल के वसातत से ये पैगाम भी देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि यहाँ पे हर इलाके में अपने इंस्टीट्यूट बनाएं और उसमें आईटी के लोग भी हों और स्पेशली सिविल के लोग हों, मैकेनिकल के लोग हों, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान के मेहनती लड़के हैं वो इस वक्त भी, हालांकि इतनी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पाकिस्तान के जो टेक्निकल वर्कर हैं और टेक्निकल काम करने वाले हैं वो पूरे गल्फ़ में और स्पेशली अपना यूरोप ममालिक में भी वो काम कर रहे हैं। खासकर वो इलाके जहाँ पे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, मतलब फाटा वाली साइड हो गई, बलूचिस्तान वाली साइड हो गई, सिंध वाली साइड हो गई, जहाँ पे बच्चों को तालीम से वो बिल्कुल महरूम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पे इस तरह के गवर्नमेंट के इदारे भी होने चाहिए और प्राइवेट इदारे भी होने चाहिए।
तो ये छोटी सी एक काविश थी जो हमने फाटा के लोगों को यहाँ पे 1 महीना रखा और उनको ट्रेनिंग दी, और जब ये पहले दिन आए थे और जब आज देखा है तो मैं समझता हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनका उठने बैठने बात करने में। और स्पेशली ये लोग इतने खुश हैं कि ये कहते हैं कि हमने जो हुनर सीखा है इसको हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। तो हमें उम्मीद है कि ये लोग जब बाहर जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने 37 लोगों को नहीं 37 ख़ानदानों को एक रोज़गार दिला रहा हूँ। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें वो तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम पूरे पाकिस्तान में अपना एक नेटवर्क बिछाएं और वहाँ पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम करें और वहाँ पे हम लोगों को टेक्निकल स्किल दें। और मैं एक छोटा सा पैगाम और देना चाहता हूँ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो उन्होंने ट्रेनिंग स्कूल बनाए हुए हैं, वो पेशावर में भी हैं, वो पिंडी में भी हैं, लाहौर में भी हैं और डिफरेंट सिटी में हैं। मैं उनको ये पैगाम देता हूँ कि वो लाजमी अपनी एक तो रजिस्ट्रेशन करवाएं नेफ्टेक के साथ, दूसरा ये कि अपनी ट्रेनिंग को इतना बेहतरीन करें कि इसी तरीके से हम हर सेंटर पे जाके प्रोग्राम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।